નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you? Standard 4, subject English Grammar, chapter number 10, verbs, part 2. So in the last previous video we had seen some rules and information about verb and complete exercise 8. In this video we will going to learn verbs and helping verbs, right? So here you can see that number 3, verbs can be divided into main verb and helping verb. There are two parts in the sentence. Doing verb are known as the main verb. Doing verb यानी फिजिकल एक्शन वाले जो वर्ब थे उसको मेन वर्ब बोलते हैं. बी वर्ब एंड बिलोंगिंग वर्ब्स आर समटाइम्स नोन एज हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब किसे बोलेंगे? जो टू बी वाले यानी कि स्टेट वर्ब थे, एम इज आर, हैव हैज एंड हेड, और बिलोंगिंग वाले हैव हैज एंड हेड, टू बी वाले एम इज आर, वॉज वेर. ओके, ये सारे वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होंगे. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. फर्स्ट वन, वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. एग्जाम्पल 1, द spaceship is moving fast. So here you can see that moving, it means move, M-O-V-E, moving main verb because ये physical action है. and is helping verb. स्टेट वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है. फिजिकल एक्शन और डूइंग वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है. ओके. नंबर 2, द शो हैज won many awards. Here you can see that won, it means win का past form होगा won. So win is main verb and has is helping verb and has means belonging verb. Okay. So here you can see that is and has is helping verb, moving and won is main verb. Next one, let's learn the different form of be. Notice that the form taken by be depends on the noun with which it is being used. तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है. मेन पॉइंट 4 के अंदर पॉइंट नंबर 1, when talking of things that happen usually and regularly. Here you can see that two parts are given. First one is singular and second one is plural. There are 3 types of person. First person, I am in singular, we are in plural form. Second person, you are in singular and you are in plural. Third person, if there is a boy, we can use he is. If there is a girl, we can use she is. And if there is a animal or thing, we can use it is. Third person plural, they are. Okay. After completing number 3 and 4, we will going to learn exercise B. Look at the words in the table below. Choose a word from each column to make as many sentences as you can. जितने sentences बन सकते हैं उतने sentence हमें बनाने होंगे. You may use the words from the middle column as often as you like. Here you can see that 3 column are given. Okay. So एक एक वर्ड हमें तीनों कॉलम में से लेके एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए. ओके. सो फर्स्ट टेबल में हम लेंगे अ काइट. तो ए काइट के साथ एम इज आर
तीनों में से क्या आएगा? एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, ओके। आर आएगा प्लूरल में एंड इज आएगा सिंगुलर में। सो हियर द वर्ड इज ए काइट, राइट। सो काइट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर, राइट। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? ए काइट इज, ए काइट इज, फिर थर्ड कॉलम में क्या दिया गया है? अ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर। अ काइट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर, ओके। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट सेंटेंस, राइट। तो सेकंड वन ले लेते हैं काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग इज अ फन स्पॉट, गोइंग टू फ्लाई काइट्स, लर्निंग हाउ टू फ्लाई काइट्स। क्या आएगा काइट फ्लाइंग में? वो हमें डिसाइड करना होगा, ओके। लास्ट वन ले लेते हैं माई पेरेंट्स। पेरेंट्स है तो एम इज आर में से आर। माई पेरेंट्स आर के बाद क्या आएगा? माई पेरेंट्स आर माई टीचर एन एक्सपर्ट एज फ्लाइंग काइट्स, के गुड काइट मेकर्स, गुड काइट मेकर्स, बिकॉज यहां पे दो पेरेंट्स है, ओके। सो माई पेरेंट्स आर गुड काइट मेकर्स, राइट। तो ऐसे जितने सेंटेंस बन सकते हैं उतने आप एक्स्ट्रा बुक में बनाना। जूम क्लास में हम ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, राइट। After completing that, we will going to learn exercise C. Tick the correct form of B and have to complete the following sentence. अभी हमने जो ऊपर टेबल देखा ना, M is R वाला, राइट। उसमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज करके उसको अंडरलाइन करनी है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज I into bracket M or R watching a movie right now. टेबल ओपन करो। टेबल में I के साथ क्या है? M, राइट। तो M के नीचे अंडरलाइन आएगी, ओके। नंबर 2, सानिया into bracket have and has a pet dog called Bruno. सानिया लड़की है तो गर्ल किस में इंक्लूड होता है? शी में। टर्न द पेज। शी के साथ क्या होएगा? हैज के हैज, राइट। तो हैज के नीचे अंडरलाइन। सेंटेंस नंबर 2 में दूसरा सेंटेंस है ब्रूनो इनटू ब्रैकेट इज और एम ब्लैक इन कलर। तो ब्रूनो मीन्स एनिमल, तो एनिमल के साथ इज आएगा, तो इज के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, बाम्बू ब्लैंक द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लैनेट इन द वर्ल्ड। बाम्बू इज इट ब्लैंक द मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर जायंट पांडास एंड गोरिलास। इट के साथ आर आएगा? नो, it is a singular pronoun and R is plural. So we can't match it and R. So is के नीचे अंडर लाएगा। It is the main source of food, right? And the next one is Aditi and Namit, दो name. So singular के plural? Yes, plural आएगा। So is आएगा या R? आर आएगा। अदिति एंड नमित आर पोएट्स। दे ब्लैंक रीडिंग देयर पोएम इन द क्लास। दे के साथ क्या था? टेबल देखो एक बार, चेक करो। यस, दे के साथ भी
आर यूज होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ब्रैकेट में हम आर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, व्हेन टॉकिंग ऑफ थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन, इट मीन्स पास्ट टेंस। स्टैंडर्ड 3rd में तो आप पास्ट टेंस के बारे में जान चुके हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ही हमारा टेबल ले लेते हैं। ओके, हियर आगे जैसे हमने देखा था ऑन पेज नंबर 45, सिंगुलर एंड प्लूरल, एम इज आर वाला टेबल, तो यहाँ पे वॉज वेयर वाला टेबल है। सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर आई वॉज, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू वेर, थर्ड पर्सन सिंगुलर if there is a boy, he was, there is a girl, she was, and if there is animal or thing, it was. Okay, in the plural side, first person plural we are, second person plural you were, we were, you were, थर्ड पर्सन प्लूरल they were। ओके, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया ओनली फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही वॉज का यूज होगा। आई के साथ वॉज एंड ही शी इट के साथ वॉज, राइट। बाकी सब में क्या है, वेर और वेर, राइट। आफ्टर दैट एक्सरसाइज डी, tick write the correct form of B to complete the following sentences. Right. Number 1, Anil blank running late for school. अनिल कौन है? लड़का, लड़का मीन्स boy, he, तो अनिल के साथ क्या यूज होगा, was, तो was के नीचे अंडरलाइन। Number 2, you blank brilliant in the play last night, Satya act well too। You के साथ क्या यहाँ पे यूज हुआ है, were, बट यहाँ पे तो नाम है ना, you were brilliant in the play last night, मतलब एक you, सिंगुलर में you were, तो where आंसर आएगा। नंबर 3, bamboo discovered in China almost 5000 years ago। बाम्बू इट में इंक्लूड होता है, तो इट के साथ वोस, मतलब बाम्बू के साथ भी वोस। आई ब्लैंक गोइंग टू स्कूल व्हेन आई फाउंड दिस किटन ऑन द रोड, आई के साथ वोस, राइट। तो ये तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी, आई होप आप सबको समझ में आ जाएगी। After that, exercise E, read the following paragraph about the Ajanta caves in Maharashtra। महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है उसके बारे में यहाँ पे रीड करना है। Underline all the verbs in it। All the verb means physical action, state verbs and belonging verb। सारे वर्ब को अंडरलाइन करनी है। Don't forget to underline the helping verbs as well। हेल्पिंग वर्ब को भी अंडरलाइन करना है, मेन वर्ब को भी अंडरलाइन करना है। सो आई होप इतना समझने के बाद तो यह एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। तो मैडम ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में देते हैं, जूम क्लास में हम इसका सॉल्यूशन ले आएंगे। ओके, so here you can see that in this video all the exercise had completed and also chapter number 10 verbs part 2 had completed. Thank you for joining us.